على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے بھائی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك بيذ الكريم تجلى باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام بسعدد و احترام عرض کرنے کے بعد علماء اکرام دیگر حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے محفل پاک کا آغاز شریعت مطہرہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لذت سرور جو محبت اور عشق کے ساتھ آپ حضرات نے حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں چند باتیں جو ضرورت کی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ یقیناً ہم بھی چشتی ہیں اور ہمارا بھی ذوق ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ضروری ہے کہ ذوق اگر انسان کا پورا نہ ہو تو پھر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت پوری نہ ہو تو پھر زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو شریعت مصطفیٰ اور رب کے محبوب جن کو رحمت للعالمین بنایا، اگر ان سے تعلق کٹ جائے تو پھر بندے کی زندگی نہیں رہتی۔ چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ اٹھنے بیٹھنے کا نام زندگی نہیں، بول چال کر لینے کا نام زندگی نہیں، دیکھنے کا نام زندگی نہیں۔ اصل زندگی ہے مدینے کے تاجدار سے تعلق جوڑ لینے کا، اور یہ سچی بات ہے۔ کئی لوگ چلتے پھرتے تھے، دیکھتے تھے، بولتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن میں ان کو زندہ نہیں، ان کو مردہ فرمایا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے جن کی زندگی پہلے والی تھی، وہ چلتے پھرتے تھے، اللہ نے اس کو مردہ کہا۔ حضور کی سنگت میں آئے تو رب نے فرمایا اب زندہ ہو گئے۔ اب یہ پکی اور کھری بات ہے کہ جو زندگی دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے نا، وہ زندگی ان سانسوں کا نام نہیں۔ سانسیں ٹوٹ بھی جائیں، بندہ قبر میں اتر بھی جائے، اللہ پھر بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی دینے کا اپنی پوری زندگی اہتمام کیا۔ سرکار نے کوشش فرمائی کہ میرے امتی وہ زندگی پائیں کہ آنکھیں بند بھی ہوں، قبر میں لیٹے بھی ہوں، پھر بھی مرے نہیں، قبر بھی زندہ ہو، ان کی قبر بھی زندہ ہو، قبر کی مٹی بھی زندہ ہو۔ یہ گر کہاں سے ملے گا؟ یہ مدینے کے تاجدار خود ہمارے تک پہنچا کے گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، معراج میرے نبی کا معجزہ ضرور ہے، معجزہ ہے، شان ہے حضور کی، ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن معراج شریف کا ہر قدم امت کے لیے راہ بھی ہے، ہمارے لیے ایک راہ بھی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو لنور یہو من آیاتنا، میرے رب نے فرمایا میں اپنے حبیب کو نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ رب نے یہ سب کچھ دکھایا، حضور کی زبان سے بیان کروایا۔ شاگرد ہو نا نکما،
تو استاد کے ہتھے آ جائے تو اب استاد کی مجبوری ہوتی ہے، یا تو استاد مار مار کے پڑھاتا ہے یا پھر استاد اپنے فن سے اس شاگرد کو قابل بناتا ہے۔ مدینے کے تاجدار جس ماحول میں آئے تھے، لوگ سارے بت پرست تھے، اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، وہ شاگرد تھے، انہوں نے شاگرد بننا تھا۔ رب نے استاد کو اتنی قابلیت عطا فرمائی کہ اس استاد نے اپنی قابلیت سے ان سب کو یوں پڑھایا کہ آج 14 صدیاں بیت گئی، حضور کا سبق اب بھی یاد کیا جا رہا ہے، یہ آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سارا ذکر، یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا سبق ہے جو سرکار پڑھا کے گئے، تو یہ شاگرد حضور کی قابلیت کا نتیجہ تھا۔ اس قابلیت میں بڑے بڑے پہلو ہیں، میں ساروں کو تو نہیں بیان کر سکتا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ السلام کو تو رب نے شان بخشی نا، ہماری امت، یہ جو امت ہے اس کا بھی رب نے بھلا کیا۔ وہ بھلا کیسے؟ آئیے سنیے، میں بالکل آغاز سے معراج شریف کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری توجہ سے سننا اور پوری محبت سے سننا، کیوں کہ یہ مدینے کے تاجدار کا سفر ہے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہمارا معراج یہی ہوگا کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں، اور میری کوشش یہی ہے کہ میں یہاں سے کھینچ کر یہ بزم وہاں تک پہنچاؤں جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سبق دے کے گئے، اور حضور کے قدموں تک پہنچ گئے تو ہمارا سر بڑا اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم سامعین، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبریل علیہ السلام سرکار کو معراج پہ لے جانے کے لیے۔ اب میرے پاس کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس نے ڈھیر ساری روایتیں نقل فرمائیں، جو ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی تفصیل سے ہے، میں اس میں سے چیدہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت جبریل اکیلے نہیں آئے تھے، ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے تیار کیا۔ اب جیسے دولہا جائے نا تو جاننے سے پہلے بارات کو تیار کیا جاتا ہے، یہاں تیاری بھی بڑے عجیب ڈھنگ کی تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، یہاں سے لے کے یہاں ناف مبارک تک یہ سارا حصہ چاک کیا، جیسے آپریشن نہیں ہوتا اس انداز میں، لیکن وہاں انداز کچھ اور تھا۔ ڈاکٹر تو نہیں تھا نا، جبریل علیہ السلام تھے، وہاں پہ ہزاروں ڈاکٹروں کی سوچیں بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کے نبی کا یہ نوکر جبریل علیہ السلام پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا، غور سے سننا۔ میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبریل نے آرڈر کیا کہ جاؤ، تھال تھے کچھ ان کے پاس، جاؤ ان تھالوں میں زمزم کا پانی لے کے آؤ۔ وہ زمزم کا پانی لے کے آئے، سینہ چاک کرنے کے بعد اندر سے نکالا گیا دل مبارک۔ کیا نکالا گیا؟ تیرا میرا نہیں، یہ دل ہے مدینے کے تاجدار کا، او عظیم دل، وہ نکالا گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آب زمزم کے ساتھ حضور کے دل مبارک کو دھویا۔ کیا کیا؟ اب آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں، یقیناً آب زم تبرک والا پانی ہے، ہم بڑی محبت سے پیتے ہیں، برکتوں والا ہے۔ شاید کوئی سمجھے ہم میں سے کہ دل کو آب زمزم کی برکت دینے کے لیے دھویا، نہ، علماء فرماتے ہیں نہیں، آب زمزم کی برکت حضور کے دل کو، اس کی ضرورت نہیں۔ رب نے چاہا کہ میرے نبی کے دل کے بھی بوسے لینا آب زمزم۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں چومی تھیں، رب نے چاہا میرے نبی کا دل بھی چومے۔ زمزم کی برکت حضور کو نہیں دینی تھی، میرے نبی کی برکت زمزم کو دینی تھی، وہ برکت زمزم کو پہنچانی تھی، اس واسطے دل مبارک کو دھویا گیا۔ سینہ مبارک چاک کر کے دل مبارک کو دھو کے بند کیا گیا، حضور کو تیار کر کے جبریل لے جانے لگے۔ جس براق پر اللہ کے نبی علیہ السلام سوار ہوئے نا، حدیث کے لفظ ہیں جہاں پر تیری میری نگاہ جاتی ہے وہاں پہ براق کا قدم پہنچتا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ ہیں، کچھ مقامات پہ جبریل علیہ السلام نے حضور سے عرض کر کے باقاعدہ 2 نفل پڑھائے۔ اب یہ غور کرنا، میں چند مقامات عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ گئے، سرکار فرماتے ہیں بلغنا اردن ذات نخل، کھجوروں والی زمین تھی۔ جبریل نے کہا سواری سے اتریے، یہاں 2 نفل پڑھیے۔ سرکار نے نفل پڑھے، پھر سرکار سواری پہ بیٹھے۔ جبریل نے پوچھا جانتے ہو یہ جگہ کون سی تھی؟ توجہ ہے نا، جانتے ہو یہ جگہ کون سی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟
हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया सल्लैता बेतैबा बेयसरब, आका आपसे नफल मदीने की जमीन पे पढ़ाए हैं। ये नफल मदीने की सरजमीन पे पहला स्टार्ट हुआ सफर, तो पहले 2 नफल कहां पे हुए? मदीना शरीफ की सरजमीन पर। सरकार फरमाते हैं फिर हम आगे गए, जब आगे गए तो एक मकाम पे फिर जिब्रील ने कहा इनजिल, सवारी से उतरिए, 2 रकात नफल पढ़िए। सरकार फरमाते हैं मैंने पढ़े। जिब्रील ने पूछा जानते हो कौन सी जगह है? सरकार ने फरमाया जिब्रील कहो। कहा सल्लैता बिमदियना इंद शजरे मूसा, ए महबूब ये वो दरख्त है जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर रब से बातें करते थे, इस दरख्त के पास 2 रकात नफल पढ़े हैं आप। उस दरख्त के पास भी नफल पढ़े। आगे चलिए, बड़ी मजे की बात, फिर सरकार आगे चले हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। सरकार फरमाते हैं बलगना अर्दन बदत लना कुसूर, एक मकाम पे पहुंचे तो हमें एक महल नजर आया। जिब्रील ने कहा यहाँ पे भी उतरो, यहाँ पे उतर कर 2 रकात नफल पढ़ो। सरकार उतरे, 2 रकात नफल पढ़े। सरकार ने फरमाया जिब्रील ये बताओ ये जगह कौन सी है? अब ये मकाम बड़ा प्यारा है। सरकार से जिब्रील ने अर्ज किया सल्लैता बेबैत लहम है सो वोलेद ईसा अल मसीह इब्न मरियम, आका ये मकाम वो है जिस मकाम पे अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ था। हमने तुमसे इस मकाम पे भी नफल पढ़ाए हैं। अब सारे मकामात पर बिलखुसूस सारी जमीन मस्जिद है कि नहीं? ये पाबंदियां पहले थी, पहले नबियों के जमाने में। हुजूर के आने के बाद ये पाबंदी खत्म। सरकार ने फरमाया मेरा कदम जमीन पे लगने से रब ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया है। ये पाबंदियां कोई नहीं थी, फिर भी चंद मखसूस जगह पे हुजूर से नफल क्यों पढ़ाए? ताकि जमाने वालों को पता चल जाए। लोग इतराज करते हैं मियां नमाज यहाँ पे भी पढ़नी है, दाता साहब जाने की क्या जरूरत है, ख्वाजा साहब के पास जाने की क्या जरूरत है, बाबा फरीद जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह के नबी भी मस्जिद हराम से चले हैं, नफल किन किन जगहों पे पढ़ रहे हैं। सरकार सबक दे रहे थे ओ बंदे खुदा के, जिस मकाम पर किसी अल्लाह के नेक बंदे का डेरा रहता है वहां पे इबादत करने से रब ज्यादा खुश होता है। ये बैतुल लहम पे भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने नफल पढ़े। आगे चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए। अब गौर करना, ये सबक शुरू हो रहा है हमारा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फातअला कौमिन यज़रऊन फी यौमिन व यहसुदून फी यौम। सरकार का गुजर एक ऐसी जमात के पास से हुआ, तवज्जो कीजिए। सरकार ने देखा कि वो लोग एक दिन बीज डाल के काश्तकारी करते हैं, अगले दिन फसल उग भी जाती है, पक भी जाती है, ये लोग काट भी लेते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? क्या देखा कि एक दिन फसल काश की, बी डाला, अगले दिन फसल पक गई, उन्होंने काटी, काटने के बाद देर नहीं गुजरी साथ ही दोबारा फसल पक गई, काटी साथ ही दोबारा पक गई, फिर उन्होंने काटी, फिर दोबारा बन गई फसल और फिर उन्होंने काट ली। सरकार ये अल्लाह की निशानियां देख रहे थे। शबे मेराज जिब्रील से पूछा जिब्रील बताओ ये क्या हाल है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील से थोड़ा गौर करना। कुछ तबका यहाँ पे सवाल उठा के ले आता है, अगर अल्लाह के नबी को पता होता तो जिब्रील से पूछते। कहते हैं ना लोग, सरकार को पता होता, तुम कहते हुजूर को हर गैब की खबर थी, सरकार को पता होता तो जिब्रील से पूछते। एक बात ज़हन में रखना, और ये पक्की बात, और ये जवाब हमेशा पूछने वाला इस वजह से नहीं पूछता कि उसे पता नहीं होता। कभी पूछने का मकसद ये होता है कि मैं सवाल करूं, तुम बोलो, आने वालों को भी खबर पहुंच जाए। और खुदा के बंदो, वो हमारी जहालतें दूर कर रहे थे, तुमने उनके इल्म को मापना शुरू कर दिया, वहां पे तराजू लगाने शुरू कर दिए। अगर सवाल जहालत और लाइल्मी की दलील है तो फिर कुरान में है, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा नहीं था, मा तिल का बेयमीने का या मूसा, मूसा बताओ तेरे दाएं हाथ में क्या है? वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, उसे पता नहीं था कि मूसा के दाएं हाथ में क्या है। बताना चाहता था कि मूसा बोलेगा, आने वालों को भी तो पता चलेगा कि मूसा के दाएं हाथ में क्या था। सरकार पूछ रहे थे कि जिब्रील बताए, आने वालों के लिए सबक बने, वो सबक हमने आप तक पहुंचाना है। बात समझ आ रही है ना? सरकार ने क्या देखा था कि लोग फसल काश करते हैं, अगले दिन पक जाती है, वो
काटते हैं, काटने के फौरन बाद फिर फसल उग जाती है, पक जाती है, फिर काटते हैं तो फिर उग आती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ये बताओ ये कौन लोग हैं। अब बड़ी प्यारी बात, जिब्रील ने कहा, हा उलाइल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह मिन उम्मतिका, आका ये तुम्हारी उम्मत के दीन के नौकर है या रसूल अल्लाह। तुम्हारी उम्मत में से दीन की नौकरी करने वालों का ये हाल होगा कि वो अमल करके हटेंगे तो रब अजर दे देगा, फिर करेंगे तो रब मजीद बढ़ा के दे देगा, उनका अजर कभी खत्म होने वाला। मैं दीन का नौकर मुजाहिद का तर्जुमा इस वास्ते कर रहा हूं कि जिहाद के कई तरीके होते हैं ना। जो शख्स भी अल्लाह के दीन की नौकरी करता है उस नौकर को अल्लाह के दीन का मुजाहिद समझा जाता है। और ये ज़हन में रखो, रब के दीन का मुजाहिद, उसका अजर कभी खत्म, उसका अजर कभी खत्म। दुनिया के नौकरियों को वालों को, नौकरों को, अपने मुलाजमों को इदारे, कंपनियां, मिलें, ये सारे कारखाने ये फैसिलिटीज देते हैं, सहूलियात देते हैं। ये सारी फैसिलिटीज एक तरफ रखो, जो रब की नौकरी का फायदा है उसको दूसरे तरफ रखो। यकीनन ये सारी सहूलतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो रब अपने दीन के नौकर को फायदा देता है वो दुनिया की नौकरी में कभी भी नहीं मिलता है। मेरा रब फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरे नौकर बनोगे तो मैं सारी कायनात को तुम्हारा नौकर बना दूंगा। समझ आ रही है? तुम अल्लाह के नौकर बनो तो रब सब कुछ तुम्हारे ताबेदार बना देगा। हमारे लोग, नौजवान तबका अमूमन नौकरियों की तलाश में इतना फिरता है। अगर कूड़ा कटकट पे पड़ी हुई अखबार में भी लिखा हो ना असामियां खाली हैं, तो नौजवान तबका बेचारा उठा के साफ करके देखता है कहीं मुलाजमत की कोई जगह तो नहीं आ गई, नौकरी की कोई जगह तो नहीं आ गई। ऐसा है कि नहीं? लोग जेब से पैसे खर्च करते हैं, दर दर के धक्के खाते हैं, हमें नौकरी मिल जाए जी मौलाना पीर साहब, हमें नौकरी मिल जाए, हमें कहीं नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। घर बहन भाई भी इस इंतजार में होते हैं, बल्कि बेचारी बहनें अपने जेवरात भी जो है बेच देती हैं कि मेरे भाई को कोई नौकरी मिले। माँ बाप भी सारा खर्चा करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई नौकरी मिले। मेरे भाइयों, जिस नौकरी की तलाश में हो, ये नौकरी खत्म हो जाने वाली है। रब के दरबार में असामियां खाली हैं और रब आवाज लगा रहे हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, आओ मेरे दीन के नौकर बनो, रब सारी कायनात तुम्हारी नौकर बना देगा। जिसने रब की नौकरी की, सारे जहान ने उसकी। ये है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में दीन का काम करने वाले, जिन्होंने रब के लिए ये घर बार छोड़ा। और फिर ये भी याद रखो, ये बताओ जरा, आप बताओ, किसी भी महकमे में नौकरी करने की कुछ शर्तें होती हैं कि नहीं? होती है ना। जितना महकमा आला, इतनी शर्तें जो है ज्यादा हार्ड होती जाएंगी, सख्त होती जाएंगी। ऐसा है कि नहीं? कभी कद काठ की शर्त होती है, इतना कद हो, इतनी बॉडी हो, इतनी उम्र हो, ऐसा है कि नहीं? इतनी तालीम हो, ये भी है कि नहीं? लेकिन रब के दरबार में जिसने नौकर लगना है ना, रब ने कोई शर्त नहीं रखी, बस एक ही शर्त है, मुसलमान हो। कितनी शर्तें हैं? सिर्फ एक, क्या हो? मोमिन मुसलमान हो, सीने में ईमान हो। बस जिस हाल का भी हो, अल्लाह उसे नौकरी पे कबूल करवाएगा। जहां पे मसनद पे बैठे हुए शेखुल हदीस की नौकरी को रब कबूल करता है, बहुत बड़े शेखुल कुरान की नौकरी को कबूल करता है, बड़े बड़े पीरे तरीकत की नौकरी को कबूल करता है, वही रब उसी मकाम पर गाजी इल्मुद्दीन जैसे बेइल्म की नौकरी को भी कबूल कर लेता है। उम्र की भी कोई शर्त नहीं, तालीम की भी कोई शर्त नहीं। तालीम थी भला गाजी इल्मुद्दीन के पास? कोई नहीं पढ़ा हुआ, कोई नहीं था, लेकिन रब ने नौकरी पे लगाया और नौकरी में कबूल भी फरमाया। अच्छा, उम्र की भी कोई शर्त नहीं, बोलिए उम्र की भी। हुसैन का शहजादा अली असगर 6 महीने का भी था, रब ने नौकरी पे कबूल करवा लिया। ऐसा है कि नहीं? तो शर्त है कोई? ना उम्र की शर्त, ना ही इल्म की शर्त। बगैर शर्त के यार मिले नौकरी और फिर बंदा दर दर के धक्के खाए और उस नौकरी की तरफ भी ना आए। और शबे मेराज तो रब ने हुजूर को दिखाया, सोने को अजर अता फरमाता रहेगा, उनका अजर कभी खत्म होने वाला। आपको मिसाल से समझाता हूं, शायद आपको समझ ना आ रही हो।
जिस शख्स ने, मैं बिल्कुल छोटी सी मिसाल, आपके बेटे को यस्सरनल कुरान पढ़ाया, अलिफ बा ता, अलिफ ज़बरा बा ज़बर बा, पहला सिपारा पढ़ाया, तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ गया, अब उसका उस्ताद कारी साहब मर गया, तुम्हारा बेटा जिंदगी भर कुरान पढ़ेगा तो कारी साहब को अजर मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। अजर खत्म हुआ? अजर खत्म हुआ? कारी साहब ने जिसको पढ़ाया था उसने आगे 4 बंदों को पढ़ा दिया, अब ये शागिर्द कारी साहब का फौत हो गया, वो 4 पढ़ते रहे, अजर कारी साहब को भी मिलता रहेगा, इसको भी मिलता रहेगा, क़यामत तक अजर खत्म। ये है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो रब के लिए निकलते हैं, रब उनके अजर को कभी खत्म नहीं होने देता, कायनात सारी उनकी नौकरी पे लगा देता है। अब हम सोचते हैं कि कायनात सारी उनकी नौकरी पे कैसे, ये यकीनी बात है मेरे भाइयों, अगर कायनात की हर शय को अपने ताबे बनाना चाहते हो तो रब के हो जाओ, सारा जहान तुम्हारे ताबे हो जाएगा। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हमारे तो दरस निज़ामी के निसाब में इब्तिदाई साल में बच्चों को उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, करीमा सादी, बोस्तान जो है, गुलिस्तान, ये किताबें उनकी पढ़ाई जाती हैं। वो आए ना इधर मुल्तान वाली साइड पे, तो जंगली इलाका था, तो देखा कि एक बुजुर्ग, गौर से सुनना, शेर पे बैठे हैं। किस पे बैठे हैं? सवारी किस पे है? हाथ में चाबक की जगह पे बड़े लंबे से सांप को पकड़ा हुआ है, सांप के साथ शेर को मारते हैं और शेर दौड़कर उनकी सवारी बन के जा रहा है। शेख सादी फरमाते हैं मेरी टांगें कांपी, शेर भी इंसान का दुश्मन, सांप भी इंसान का। ये भला बंदा है कि शेर पे सवारी कर रहा है, सांप से चाबक वाला काम ले रहा है, इसने ऐसा मकाम कैसे पाया? शेख सादी फरमाते मेरे पास से गुजरा ना, तो मैंने कहा बाबा जी नुस्खा हमें भी बताते जाओ ना कि ये चीजें भी बंदे की गुलाम बन जाएं। तो उस बाबे ने रुक कर क्या कहा? उसने कहा तू हम गर्दन अज हुक्म दावर मपेच, कि गर्दन न पेचंद से हुक्म तू हेच। और सादी, अल्लाह के हुक्म से तू सर न फेर, कायनात की कोई शय तेरे हुक्म से सर नहीं फेरेगी, हर शय तेरी ताबेदार बनेगी। और ये मैं कोई हीर रांझे की बातें नहीं सुना रहा, ये सिर्फ कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा, ये अल्लाह के हुक्म में से ये बकायदा तौर पे एक बकायदा सबूत है। और मैं पूरी जिम्मेदारी पे एक एक पहलू पे सबूत पेश कर सकता हूँ। दौरे फारूक आजम था, हजरत उमर फारूक का दौर था, जमीन पे जलजिला आया, लोग भागे। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, जैसे आता है तो लोग निकलते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 मिनट के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर जैसा बनो। हजरत उमर ने क्या किया? अपना पांव उठाया, ये खुरी मारी जमीन पे, एड़ी जोर से मार के फरमाया उसको नहीं याद अलम आदिल अलैक, ओए जमीन रुक जा। क्या उमर ने तेरे ऊपर अदल नहीं किया कि तू हिलती है? ये बात भी बड़ी प्यारी है, लेकिन अगली इससे भी प्यारी। इमाम राजी फरमाते फलम यतज़लज़ल बादो, वो दिन गया आज का आया, मदीने की जमीन पे जलजला नहीं आया। तेरा मेरा कहना हमारा बच्चा नहीं मानता, हमारा शिगिर्द नहीं मानता, हमारा मोहल्लेदार नहीं मानता। वो जुबान कैसी थी कि जिनका कहना जमीन ने भी माना, वो फौत भी हो गए तब भी जमीन मान रही है, उनके फौत हुए सदियां भी गुजर गई तब भी जमीन को पता है कि मुझे किसी ने रोका था। और इमाम राजी फरमाते हैं सिर्फ आज तक नहीं, इमाम राजी फरमाते हैं मेरा ईमान है क़यामत वाला जलजला ही आएगा, उससे पहले सरजमीन मदीना पे जलजला नहीं आएगा। ये है वो ताकत जुबान की, कहां से मिली? ये रब की नौकरी से मिली, अल्लाह की नौकरी से मिली। ये है वो मुजाहिद जिनको शबे मेराज मदीने के ताजदार देख रहे थे। ये है वो मुजाहिद जिनका अजर कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये है वो मुजाहिद जिनकी खिदमतों पर रब्बुल जलाल इतने बड़े अजर अता फरमाता है। हज़रत उमर का ही दौर था। दूसरी बात सुनो, मदीना में आग लग गई, लोग बड़े भागे दौड़े। उस वक्त फायर ब्रिगेड का तो होता नहीं था, ना 1122 थी कि उनको फोन करें कि पानी आके डाले और आग बुझाए। हजरत उमर को किसी ने आके कहा तुम्हारी रियासत मदीना में आग लग गई, तुम हो रियासत मदीना के अमीर, इंतजाम करो। हजरत उमर ने रुक्का लिखा, रुक्का लिख के कासिद को दिया, फरमाया आग में डाल दो, जाके रुक्का आग में डाल दो। कासिद ने बगैर सोचे वो रुक्का उठाया, आग में डाला। कहते हैं आग में डालने की देर थी, आग जहां थी वहीं पे बुझ गई। कोई साइंस बता सकती है कि रुक्का डालने से आग बुझे? ऐसा भला हो सकता है?
रुक्का चमड़े पे लिखा होगा, कपड़े पे लिखा होगा, कागज पे लिखा होगा, आग में डालो तो आग उल्टा उसको जलाएगी। आग में डालने से कैसे आग बुझी? वजह यह थी कि ये वो नौकर था जो रब का नौकर था। जो रब का नौकर हो फिर कायनात सारी उसकी नौकर होती है, कायनात सारी उसकी खिदमत करती है। और मेरे भाइयों, दुनिया में भी नौकरी वालों को स्केल मिलते हैं कि नहीं? 14वें स्केल दा मुलाजिम है जी, 17वें स्केल दा मुलाजिम है। जो रब की नौकरी करता है उनको भी रब स्केल अता फरमाता है। जिसकी नौकरी बोती उसके स्केल भी सबसे, जिनकी नौकरी बोती उनके स्केल भी सबसे। तू मैं जरा गौर करना, तू मैं इबादत करते रहें, इबादत करते रहें, इबादत करते रहें, जितनी भी कर लें, जन्नत के क्या बनेंगे? हकदार। अल्लाह जन्नत देगा ना, जन्नत हमारे हक में लिख दी जाएगी। जन्नत के क्या बनेंगे? हकदार। लेकिन कुछ हैं जिन्होंने नौकरी बड़े आला स्केल से की, उनको फिर रब ने सिर्फ हकदार नहीं बनाया, उनको रब ने जन्नत का सरदार बनाया है। समझ आ रही है बात की? नौकरी बड़ी तो स्केल भी, खिदमत बड़ी तो स्केल भी। फरमाया जवान मेरी उम्मत के जितने जनती होंगे उनके सरदार शहजादे हसन और हुसैन होंगे। और फरमाया मेरी उम्मत के जितने बूढ़े होंगे जन्नत में उनके सरदार अबू बकर उमर होंगे। ये है मिजाज कि वहां पे जिसकी खिदमत बड़ी उसका स्केल भी, जिसकी खिदमत ज्यादा उसका स्केल भी। सरकार ने खुद फरमाया, गौर करना, फरमाया माल अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द का फैना हो। फरमाया जिसने हमारी नौकरी की हमने उसे बदला दुनिया पे भी दे दिया। लेकिन फरमाया हमारा एक नौकर वो है जिसने नौकरी बड़े कमाल की। मा खला अबा बकर फैन लहू इंदना यदन युकाफी हिल्लाहु यौमल क़ियामा। फरमाया सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने मेरी नौकरी यूं की कि जिनको अजर रब ही क़यामत के दिन अता फरमाएगा। बात समझ आई? नौकरी पे क्या मिलता है? अजर मिलता है। आज की महफिल के इश्तिहार पे तुमने देखा था, नाम लिखा था हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे तो सरों के ताज, हमारे सरों के ताज, हम उनके कदमों की धूल, मगर अल्लाह के दीन के वो भी नौकर, पहरेदार। हम अपने लिहाज से नहीं कह रहे, हम तो उनके दर के नौकर, उनके कुत्तों के भी नौकर। लेकिन जब रब की बारगाह आए तो रब की बारगाह में तो वो है नौकर। उन्होंने सारी जिंदगी दीन की नौकरी की, सारी जिंदगी दीन की नौकरी की। और जिस वक्त एक बात खास तौर पे, जो खुद नौकर थे उन्होंने दीन के नौकरों का हया भी किया, दीन के नौकरों का। इमाम जाफर सादिक, आजकल तो पीरी मुरीदी का सिलसिला ही बड़ा अजीब है ना, कि जिसकी लंबी गाड़ी वो बड़ा पीर, जिसने कपड़े सारे उतार दिए वो बड़ा पीर, जो चौक में बैठ गया कपड़े उतार के, हमारे माशरे में ये सूरत हाल है, वो बड़ा पीर। सबसे बड़ा पीर तो इमाम जाफर सादिक थे कि नहीं? और बोलिए ना, को नहीं मानते उनको पीर तुम? और इमाम जाफर सादिक को पीर कोई नहीं मानते? चलो मैं पूरा बताता हूँ, शायद फिर समझ। इमाम जाफर सादिक बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर के, किसके बेटे हैं? इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। ज़ैनुल आबिदीन का पोता जाफर सादिक, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन शहजादे हैं मौला अली के। अब पुष्ट समझ आई? अली से बाद हुसैन, हुसैन से बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर पीर हैं कि नहीं? वो सिर्फ पीर नहीं, वो पीरों के भी पीर है। उनकी मोहरें लगे तो पीर पीर बनता है, उनकी तस्दीकों से पीर की पीर होने की शनाख्त होती है। वो इमाम जाफर सादिक कैसे पीर थे? फतवा दिया करते थे। क्या किया करते थे? बोलिए ना, क्या किया करते थे? एक दरवेश फतवा लेने आया, मैं फतवा सिर्फ सुनाऊंगा उनको। इमाम जाफर सादिक के पास फतवा लेने के लिए आया, तलवार पर सोने का पानी चढ़ाना जायज है जी? किससे पूछा? किससे पूछा? इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम जाफर सादिक ने फतवा दिया।
फरमाया ला बास बिही, कोई हरज नहीं। फरमाया कोई हरज। मुफ्ती सिर्फ फतवा देता है या दलील भी देनी उसकी जिम्मेदारी होती है? और बोलिए ना, फतवा फतवे के साथ क्या लिखे ताकि कोई फतवे को चैलेंज ना कर सके। आजकल के हजारों मुफ्ती उनके कदमों पे कुर्बान। हकीकत है कि नहीं? क्यों? क्योंकि शरीयत तो समझाई भी हमें उन्होंने है। इमाम जाफर सादिक ने सिर्फ फतवा नहीं दिया, दलील भी दी। दलील क्या दी? फरमाया कद हल्ला अबू बकर सिद्दीक सैफहू, फरमाया तलवार पे सोने चांदी का पानी चढ़ाना जायज है। दलील ये है कि अल्लाह के नबी के दीन के नौकर अबू बकर सिद्दीक ने तलवार पे चांदी का पानी चढ़ाया, लिहाजा जायज है। लिहाजा अब ये है नौकर दीन का, और इनका मकाम कितना ऊंचा। आगे से पूछने वाला सवाल बिगड़ गया। उसने कहा अफतकुलु सिद्दीक, तुम अबू बकर को सिद्दीक कहते हो? फिर शेर खुदा का खून जिसके सामने किसी ने बिगड़ा, तो अब ये सिर्फ फतवा लिख के देने वाले नहीं ना। जब उसने कहा तुम सिद्दीक कहते हो, फवा सबल इमाम, इमाम उठ के खड़े हो गए। इमाम जाफर सादिक, आपने फरमाया हाँ मैं अबू बकर को सिद्दीक कहता हूँ, सिद्दीक कहता हूँ, सिद्दीक कहता हूँ। फरमाया फमन लम यकुल लहु सिद्दीक फला सद्दक़ल्लाहु क़ौलहु फिद दुनिया वला फिल आखिरह। फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक नहीं ना मानता, रब उसके कलमे का ना दुनिया में एतबार करेगा ना आखिरत में एतबार करेगा। अच्छा, मैं इन बुजुर्गों की बारगाह में गया फकत किस लिहाज से कि ये दीन के खिदमत में जितना दर्जा आला इनका इतना ही सकेल बुलंद। तू मैं इबादत करें तो जन्नत के हकदार बनते हैं। उन्होंने कुर्बानी देकर जन्नत के सरदार बने। हम हकदार बनते हैं, वो जन्नत के सरदार बने। जन्नत की सरदारियां रब ने उनको अता फरमाई। क्यों? वो दीन के क्या थे? खिदमत करने वाले, दीन को बुलंद करने वाले, दीन को इज्जतें अता करने वाले। आगे चलिए, ये मुजाहिदून फी सबील पे बात आई, मैं आगे चलता हूँ। आगे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आगे गया, एक मकाम से गुजरा तो क्या था? फरमाया कुछ लोग थे जिनके सरों पर बहुत बड़ा पत्थर मारा जाता, उनका दिमाग निकल जाता, फिर दिमाग सर दोबारा जुड़ता, फिर पत्थर मारा जाता, फिर भेजा बाहर निकल जाता, फिर मारा जाता, फिर दिमाग से भेजा बाहर निकल जाता। सरकार ने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अब जाग रहे हैं आप? जाग रहे हैं आप? अब सुनिए, पूछा ये कौन लोग हैं? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से जिब्रील ने क्या कहा सुनिए। फरमाया अर्ज किया हाउलाज़ीना ततसाक़ल रूसुहुम अनिस सलातिल मक्तूबा, या रसूलल्लाह ये तुम्हारी उम्मत के वो लोग हैं जो फर्ज नमाज पढ़ने से भी घबराते थे, जिनके सर बोझल हो जाते थे। क्या पढ़ने से? फर्ज नमाज पढ़ने से भी सारे बोझल। सर को कूटा जा रहा है। अब मुझे बताओ, हुजूर की मेराज वो थी, तेरी मेरी मेराज क्या है? तेरी मेरी मेराज क्या है? नमाज है। नमाज पढ़ने से मेराज नसीब होती है। जो नमाज छोड़ता है, सरकार ने देखा कि सर उसका पत्थर से, ओ बोलिए ना यार, बोलिए, सर उसका पत्थर से। और हम गुनहगार हैं, रसूलुल्लाह का दीन तो नहीं ना झूठा, खताकार हम है ना। तो मोमिन वो उस शख्स के बख्शे जाने के इम्कान है जो समझे कि मैं गलत, मेरे नबी का दीन गलत। हम अपनी गलती है अगर कोई हमारे अंदर, तो मैं किसी का ना नाम ले रहा हूँ ना किसी को मुख्तस कर रहा हूँ। ये हुजूर के मेराज का सदका हमने अपनी इस्लाह करनी है कि फरमाया फर्ज नमाज पढ़ने से जिसके सर में बोझ पड़ता था, अल्लाह उसके सर को फरिश्तों के पत्थर से कुचलवाएगा और उनके दिमाग बाहर निकल आएंगे। फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी नमाज पढ़ने में सुस्ती थी। अगर नमाज पढ़ना कोई छोटी इबादत होती तो करबला के मैदान में कितना औखी हालत थी, हुसैन छोड़ देते, छोड़ न देते। थोड़ी बहुत इबादत होती, माड़ी मूड़ी होती तो हुसैन छोड़ देते। तलवारों के साए में भी इमाम हुसैन ने इबादत को छोड़ा, और छोड़ा सजदे में सार कटाया के नहीं, वो कटाया के नहीं। हमें सबक क्या दे के गए कि नमाज को नहीं पढ़नी? सबक ये दे के गए वो सिर कट भी जाए, तुम्हारी मसरूफियत है साइड पर,
पाक हुसैन के खून के एक कतरे के बराबर हमारी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती, जिन्होंने अपना खून दीने रसूल पे कुर्बान कर दिया। जब वो नमाज की छुट्टी नहीं कर रहे तो हम कैसे नमाज की छुट्टी करें? सरकार ने इन लोगों को देखा। आगे सुनिए, सरकार फरमाते मैं आगे गया तो कुछ लोगों को मैंने देखा किस अंदाज में कि उनके सामने गोश्त पक्का है, ताजा पका हुआ ठीक ठाक गोश्त, तवज्जो कीजिए, और दूसरी तरफ पड़ा है गोश्त कच्चा। जो पका हुआ है वो खुशबूदार भी है, खुश ज़ायका भी है, उसकी खुशबू भी है। जो कच्चा है उसमें से बदबू आ रही है। क्या आ रही है? बदबू आ रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पक्का छोड़ के, खुशबूदार छोड़ के बदबूदार की तरफ जाते हैं और बदबूदार गोश्त को खाते हैं। सरकार ने ये देखा, पूछा जिब्रील बताओ ये क्या है? तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह, अब ये इस पे भी गौर करना, या रसूल अल्लाह ये तुम्हारी उम्मत के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी उम्मत के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हक हलाल की बीवियां अता फरमाई थीं। ये हक हलाल की बीवियों को छोड़कर बदकारी के अड्डे पे जाकर जिना करते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है कि ये हलाल और पका हुआ गोश्त छोड़कर हराम और कच्चे हुए गोश्त की तरफ जाने वाला। इसी तरह मिसाल है उम्मत की कि जो अपनी हक हलाल की बीवी को छोड़कर गैर के पास जाता है, जो वो औरत जो अपने हावंद को छोड़कर किसी गैर के पास जाती है। फरमाया ये मिसाल है कि इतने बेवकूफ लोग हैं कि हक हलाल की बीवी वहां पे अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो अजर मिलता। क्या मिलता? नाजायज गया तो वहां पे क्या मिली? सजा मिली। तो सरकार को बताया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी उम्मत के ये वो लोग हैं। आगे सुनिए, दो चीजें अगली बयान करनी है और फिर मैं बात को खत्म करूंगा। आगे गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक टहनी किसी दरख्त की यूं सड़क की जानिब निकली हुई है। कोई भी पास से गुजरता है तो उसके कपड़े फाड़ देती है, किसी की जिल्द को जख्मी कर देती है, कोई भी गुजरता है तो उसको तकलीफ पहुंचाती है। सरकार ने पूछा ए जिब्रील ये कौन है? गौर कीजिए। अर्ज कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तुम्हारी उम्मत के वो लोग हैं जो चौकों में जाके बैठ जाते थे, जिनसे गुजरने वालों की इज्जत महफूज नहीं रहती थी। बदनिगाही करते हैं, हर आने जाने वाला इनसे महफूज नहीं रहता। ये हैं तुम्हारी उम्मत के वो लोग। अगली बात, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु